Good morning to everyone. This side Bhavisha Verma, Assistant Professor from SD College Ambala Cant, and the next topic of today is hypothesis testing. So, in the previous, we have learned about estimation, and now we will be learning about hypothesis. So, what will be the learning outcomes of this session is what is hypothesis, what is null hypothesis, what is alternative hypothesis, what are the type 1 and type 2 errors, what is the procedure of hypothesis testing, and in between I have explained what is level of significance, what is one tail test, two tail test, how to use one tail, how and when to use one tail test. Then I have also given a table which suggests as when to use z test and when to use t test. And at the end we will be learning about the limitations of hypothesis testing. So what is hypothesis? See, hypothesis is a statement that can be that can be tested with the help of scientific methods to judge the validity of the statement. For example, if I say that if we increase the amount of light during the study time of a student, then his performance will be greater as compared when the light is dim when he is studying. So this statement can is a hypothetical statement. It can be judged with the help of scientific methods, as we can check the performance of the students when before the brightening of light and after the brightening of light. So with the help with this statement that is hypothetical, that can be judged with the help of scientific methods, we can say that it is a hypothesis statement. So it is a proportional statement that can be used to determine the validity of the statement. It is a statement logically formed from an opinion on the basis of relationship between two or more variables. See, what does it says? It says that it is a logical statement and it is based on the opinion of somebody. Like I have said, if we increase the light during the study time, then the performance of the student will be increased. So it is my opinion that if the light is increased, the performance will be increased. So there is a relationship between light and the performance. So for example, we have taken, so we can study the example. Next example is students who receive counseling show greater increase in the creativity than those who are not receiving the counselings. See, यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो स्टूडेंट्स को अगर काउंसलिंग मिल रही है, दैट मीन्स उनकी परफॉर्मेंस और उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू दोज जिनको की काउंसलिंग नहीं मिल रही है. सो ये स्टेटमेंट जो है ये हम जज कर सकते हैं किसकी, साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से. उनके जो स्टूडेंट्स के जो आउटकम्स हैं, यानी कि उनकी क्रिएटिविटी के जो आउटकम्स हैं, हम उनको जज कर कर ये पता कर सकते हैं कि क्या उनके अंदर काउंसलिंग के बाद कोई डिफरेंस आया या नहीं आया, या वो काउंसलिंग के पहले भी उतना ही परफॉर्म कर रहे थे और काउंसलिंग के बाद भी उतना ही परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली डिफरेंस जज करने के लिए जो है, हम एक स्टेटमेंट के बीच में जो डिफरेंस जज करने के लिए हम मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि उसकी स्टेटमेंट की हम वैलिडिटी को प्रूव कर सकें. ठीक है. तो ये बेसिकली हम हाइपोथेसिस में करते हैं. सी नेक्स्ट एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट विद चाइल्ड आर्टिस्ट आर मोर लाइक हैज़ मोर लाइकिंग. ठीक है. ऐसी एडवर्टीजमेंट्स जिनमें कि चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनको की ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू दोस्त जिसमें अडल्ट होते हैं. सी किड्स सबको अच्छे लगते हैं. ठीक है. तो अगर जिस एडवर्टीजमेंट में क्यूट किड्स होंगे या बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होंगे तो उस एडवर्टीजमेंट को लोग ज़्यादा देखेंगे और उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी. सी इस चीज़ को हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. सी हाइपोथेसिस जो है वो क्लियर एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट होनी चाहिए. वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं. और दूसरा पॉइंट आता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड. यानी कि जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है हमारी वो टेस्टिंग की कैपेबल होनी चाहिए. ऐसी स्टेटमेंट नहीं हो कि उसको हम टेस्ट ना कर पाए, यानी कि उसके ऊपर कोई साइंटिफिक मेथड्स ना हम यूज़ कर पाए. रिलेशनशिप होना चाहिए वेरिएबल्स के बीच में, जैसे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और लाइट की इंक्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए कि हाँ, अगर हम लाइट को इंक्रीज़ करेंगे तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी. यानी कि अगर काउंसलिंग मिलेगी तो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ को ही हम फाइंड आउट करना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हम
उसमें जो है मल्टीपल स्कोप्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, लिमिटेड स्कोप होना चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंट विद नोन फैक्ट्स, दैट मीन्स कि उसमें जो हमें ऐसे फैक्ट्स को ही जज करना है जो कि हम जानना चाहते हैं, ना कि ऐसे वेग फैक्ट्स को जिनका कि कोई यूज़ नहीं है। रिस्पॉन्सिव टू टेस्टिंग विद रीजनेबल टाइम, सी हमें डाटा कलेक्ट करने के लिए एक रीज़नेबल टाइम का एक टाइम होना ज़रूरी है, यानी कि एक रिज़ल्ट को प्रूव करने की एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए टेस्ट को करने के लिए, ना कि हम पूरा टाइम डाटा कलेक्शन में ही नहीं स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स को काउंसलिंग मिलेगी तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, तो एक लिमिटेड टाइम है कि काउंसलिंग मिली, उसके बाद उन्होंने वर्क परफॉर्म किया और उसके बाद उनका जो रिजल्ट है वो बेटर हुआ या वर्स हुआ या नो चेंज हुआ। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इट क्लेम्स टू एक्सप्लेन, जो वो प्रूव करना चाहती है स्टेटमेंट, क्या वो वही चीज़ वो प्रूव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। सी अगर हमें परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बिफोर काउंसलिंग जो थी वो कैसी थी और आफ्टर काउंसलिंग जो थी वो कैसी, वो बेटर हुई कि नहीं, क्या ये चीज़ को प्रूव कर पा रही है हमारी स्टेटमेंट, तो ही हम जो है उसको हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कहेंगे। स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन मोस्ट सिंपल टर्म्स सो दैट द सेम इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय, जो स्टेटमेंट है हमारी वो सिंपलर होनी चाहिए ताकि वो जो भी उसको पढ़े या समझना चाहे उसे ईजिली वो चीज़ समझ आ जाए है, और उस चीज़ का जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। Next is what is null hypothesis. See, null hypothesis, null means absolutely zero. See, null has no change. Null means no change. See, null hypothesis says that there is no significant difference between two variables. अब null hypothesis का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज़ दो वेरिएबल्स के ऊपर, तो हम कुछ भी कर लें तो उनका जो रिजल्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम जो रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी नल हाइपोथेसिस ये कहता है, इट इज़ एन असर्शन दैट वी होल्ड इज ट्रू अनलेस वी हैव सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू कंक्लूड अदरवाइज। ये एक असर्शन है कि जब तक हमारे पास कोई ट्रू एविडेंस नहीं होगा उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, नल हाइपोथेसिस जो है वो उसको जो है अप्रूव नहीं करेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अदर देन अगर हमारे पास उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं, H0 से डिनोट करते हैं। और इस नल हाइपोथेसिस को कैसे लिखा जाता है, इफ़ द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू हाइपोथाइज्ड मीन, यानी कि नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन का मीन म्यू इज इक्वल्स टू हाइपोथेसिस का मीन म्यू नॉट के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें एग्जाम्पल लिया नल हाइपोथेसिस का, क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि सपोज करो हमने दो प्लांट्स लिए, एक प्लांट को हमने क्या किया, क्लब सोडा के साथ उसको क्लब सोडा के साथ उसको फर्टिलाइज किया और दूसरे को हमने सिंपल वाटर दिया। सो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द ग्रोथ ऑफ द टू प्लांट्स, कि जो हम ये कर रहे हैं इससे कोई चेंज नहीं आएगा प्लांट की ग्रोथ पे और प्लांट जो है अपने आप ही ग्रो करेगा। सी नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट है, यानी कि ऑल्टरनेटिव क्या कहता है कि देयर विल बी अ चेंज एंड देयर विल बी अ न्यू थ्योरी, ठीक है, एज इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वन, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि हमारा जो चेंज है, जो हम साइंटिफिक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू रिजल्ट हमें देगा एज कम्पेयर टू द ओल्ड वन, यानी कि नल हाइपोथेसिस के कंपैरिजन में। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज यूजुअली व्हाट यू विल बी टेस्टिंग इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम परफॉर्म ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को वो जो है वो रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और जो ओल्ड थ्योरी है कि कोई चेंज नहीं आएगा हमारे वेरिएबल्स में, उसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। सी जब भी हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, हम बेसिकली रिसर्च इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस आए हमारी रिसर्च से, और हम उस चीज़ को प्रूव करें कि जब हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया तो उसके ऊपर हमने जो टेस्ट लगाए उससे हमें डिफरेंट रिजल्ट में से मिले एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिजल्ट। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय HA, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कैसे लिखते हैं, HA म्यू इज नॉट इक्वल्स टू हाइपोथाइज्ड मीन।
मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इज इक्वल्स टू हाइपोथाइज्ड मीन. सो फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले नल हाइपोथेसिस में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर एक प्लांट को हम क्लब सोडा के साथ 1 मंथ तक उसको फेड करते हैं और दूसरे प्लांट को हम ओनली प्लेन वाटर के साथ फेड करते हैं, तो देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट चेंज, नो चेंज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि अगर हमने एक प्लांट को क्लब सोडा दिया है और दूसरे प्लांट को हमने प्लेन वाटर पर रखा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज इन द ग्रोथ ऑफ द टू प्लांट्स. हो सकता है जो हमने क्लब सोडा पर प्लांट को रखा है उसकी ग्रोथ बेटर हो एज कम्पेयर टू द अदर वन जिसको हमने प्लेन वाटर पर रखा है. सो देयर विल बी सम चेंज ना. ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक को अगर हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं तो उसकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो है दूसरे के ऊपर जिसको कि हम नहीं दे रहे हैं उसकी ग्रोथ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली जिसमें हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स उसकी ग्रोथ में हमेशा बेटर होगी उसकी ग्रोथ एज कम्पेयर टू द अदर वन.